السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دونوں جہان کی دولتوں سے آپ سبھی کو اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ تو دوستو، بہت ہی پیارا بیان سید امین القادری صاحب کا ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس بیان کو دل کی گہرائیوں سے سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ کی روح تازہ ہو جائے گی۔ بیان شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اینڈ شیئر کیجئے۔ چلیے دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے سید امین القادری صاحب کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ خود ہی سن لیجئے دوستو۔ نشے میں نہیں ہوں گے جیسے وہ پاگل ہے، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہوں گے جیسے وہ آصف زدہ ہیں، وہ آصف زدہ نہیں ہوں گے۔ کیا بات ہے! آج کس طریقے سے اللہ اکبر سود کو پرموٹ کیا، بے شک بیاج کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، شاید اسی دور کے لیے کہا گیا تھا جو سود سے بچنے کی کوشش کرے، کیا بات ہے ماشاءاللہ، سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا، سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا۔ آج بے شک کہ ہم اسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سود لین دین مسلم آبادیوں میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں کو خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم حرام کماتے۔ جی جی بے شک، مجھے یاد آئی، آگے بڑھنے سے پہلے اس حدیث کو میں آگے بڑھاؤں اس سے پہلے بیچ میں ایک روایت یاد آئی۔ میرے بھائیوں بہت خوب، ذرا غور کرو، آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا، جی آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا، جب کوئی بندہ حج کے لیے جائے اور سفر حج میں مر جائے، اللہ اکبر، سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ نمبر بے شک، جو حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حج کرنے والے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حاجی کی شان یہ ہے کہ حاجی سات کیا بات ہے، ایسے لوگوں کی بخشش کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ حاجی کی شان یہ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن کوئی تو صحیح حاجی ماشاءاللہ، کہلاتے ہیں، حاجی ہے کتنے؟ جو واقعی حاجی ہوگا وہ 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا۔ حاجی کا ٹائٹل پانا آسان ہے، حاجی بن جانا آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سنو سنو، غور سے سنو، اللہ کے بندو توجہ سے سنو۔ اللہ اکبر، حج کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، حج کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حج کرنے والا 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا، وہ شفیع بنے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بے شک، اگر کوئی خوش نصیب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سفر حج میں مر جائے تو جب تک دنیا جی رہے گی، جب تک چاند سورج نکلتے رہیں گے، جب تک عرفات کے میدان میں حج ہوتا رہے گا، جو سفر حج جی بے شک، قیامت تک ہر سال اللہ اس کو حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے، روایت میں آیا ہے اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا جائے گا جو قیامت تک اس کے لیے حج کرتا رہے گا۔ بولو سفر حج میں مرنے کی بے شک، کیا ہے؟ مگر اب سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ اکبر، ایک قافلہ سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے جب وہ جی ماشاءاللہ، سفر میں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا سوچا حاجی ہے، حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، ابھی کعبے تک بے شک، کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حاجی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے پہ کپڑا ڈھانک دیا گیا۔ جب کپڑا ڈھانک دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے سوچا چلو جی بے شک، چلو کفن پہنا دو تاکہ ہم ان کو دفن کر سکیں۔ جیسے ہی غسل دینے کے لیے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، گدھے کی جی بے شک ماشاءاللہ، اللہ اکبر، پورے قافلے میں کوہرام مچ گیا، پورا قافلہ بے چین ہو گیا۔ ارے سفر حج میں مرنا تو بے شک، کی بات ہے، لیکن سب رونے لگے، سب بے چین ہونے لگے، کیا بات ہے، لگے اور دعا کرتے تھے، یا اللہ تو کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا۔ واہ واہ ماشاءاللہ، والا اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر، تو کسی کی آنکھ لگی تو خواب میں ارشاد جی جی کیا بات ہے، اس کے گدھے کی طرح چہرہ ہونے بے شک، افسوس اور تعجب کرتے
हो, ये नहीं पूछते कि इसका चेहरा सफर हज में भी आखिर गधे की तरह क्यों हो गया। जब पूछा गया तो बताया गया ये सूद के पैसे से आया था और ये सूद का कारोबार करता था, इसलिए बतौर इबरत इसकी शक्ल को गधे की तरह कर दी गई। मेरे प्यारे आका तो वो तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया 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 की मोहब्बत, दुनिया का माल, कुरान कहता है हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, यहाँ तक कि तुम कब्रों के गढ़ों तक पहुंच गए। माल की मोहब्बत से निकलो। माल कमाना बुरा नहीं है, लेकिन माल की मोहब्बत में मजहबों बुरा है, आखिरत को फरोख्त करना बुरा है। याद रखिए ये दुनिया है। एक बात मैं आपसे कहता हूं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, क्या बात है, 9% लोग अच्छे से सुन रहे हैं, 1% लोग अगर गड़बड़ कर रहे हैं, ये मैं माशाल्लाह अकीदे पे छोड़ता हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वजूद के होने की गवाही में चिल्लम चाट करते हैं, उन्हें करने दीजिए। जी बेशक, 1% लोगों की तरफ नहीं, मेरी तवज्जो उन 99% खुश नसीबों की, क्या बात है माशाल्लाह, अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, जो अल्लाह की रजा के लिए यहाँ बैठे हैं। 1% लोगों में चाहे जमीन पे चाहे मिंबर पे जी जी जो गड़बड़ करे उनको करने दीजिए। आप सुनिए, अब उस 1% में से भी 50% उसमें से भी इधर आ गए हैं और माशाल्लाह सब सुन रहे हैं। आधा % उसमें से अब लोग अगर कुछ हैं उनको करने दे वो जो कर रहे हैं। जी बेशक, सुनिए एक बात आपसे कहता हूं, हम झूठ बोल के माल कमा लें, हम सूद के जरिए माल कमा लें, हम चोरी के जरिए माल कमा लें, किसी जरिए माल कमा लें, थोड़ा जरा गौर कीजिए। पीवर बेशक, ये भी माल कमाए तो मुझे बताइए माल किससे वफा करता है? जो हमसे वफा करेगा। एक बात याद रखना, माल जरूर कमाओ मगर माल के चक्कर में अल्लाह को मत भूलो। यही तो फिरौनियत है। देखो मालदार फिरौन भी है, मालदार सुलेमान गनी भी है, मालदार नमरूद भी है, मालदार सुलेमान अलैहिस्सलाम भी है, मालदार जो है वो क्या बात है, और मालदार जुल्करनैन भी है। लेकिन फर्क क्या है? दोनों मालदारों की मजम्मत नहीं है। सैयदना उस्मान गनी को माल के बदले में जन्नत बेची गई है। अगर माल बुरा होता तो उस्मान गनी की भी बुराई की जाती माज़अल्लाह माल की बुनियाद पर। कोई उस्मान गनी की बुराई नहीं करता। अल्लाह अकबर, हाय हाय हाय, बुराई होती है। उस्मान माशाल्लाह माशाल्लाह, माल ने कानून को अल्लाह का बाकी बना दिया जी, और माल ने उस्मान गनी को जन्नती बना दिया। माल बुरा नहीं है, माल का इस्तेमाल बुरा है। क्या हुकूमत मिली नमरूद बिगड़ गया, हुकूमत मिली सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत ने नहीं बिगाड़ा, बल्कि जब भी नेमत मिलती है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सुबहान रब्बियल आला। नमरूद कहता है अना रब्बुकुमुल आला और सुलेमान कहते हैं सुबहान रब्बियल आला। माल बुरा नहीं है, माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाना बुरा है। अब आपसे पूछता हूं, क्या बात है, कितने मालदार हैं हम? थोड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह, माल सबको अल्लाह ने दिया, जी जी बहुत खूब, दिया और जिनको नहीं मिला मैं दुआ करता हूं अल्लाह उन सबको अता करे। आमीन आमीन। बेशक, सुनो, माल आपने कमा लिया, बहुत माल मिल गया, माल मिलने के बाद जी, आपको अल्लाह न करे 1000 बार न करे डॉक्टर ने कह दिया कि ये सीरियस है। कितने भी बीमार हैं आप, अल्लाह ना करे अल्लाह आपको कभी बीमार ना करे, सबको सेहत दे, लेकिन एक बेशक, रियलिटी होती है ना कि बीमार तो आदमी ने बड़े से बड़ा आलिम हो, खतीब हो, जी सही फरमा रहे, साहब हो, पीर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, बीमार तो पड़ना ही है। डॉक्टर ने कहा ये सीरियस है, इनका मामला जो है, जी बेशक, आप मुझे बताएं, आपने 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का बंगला बनाया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने कहा सीरियस है, सुभान अल्लाह सुभान, में रहेंगे। थोड़ा तसव्वुर कीजिए, देखिए जलसे जो है जी बेशक, वो भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं होती,
भीड़ आती है, हम इसलिए खुश होते हैं कि जितने ज्यादा लोग तक पैगाम पहुंचेगा उतना ज्यादा फायदा है, लेकिन भीड़ इकट्ठा करने जी। के लिए सियासी जलसे होते, मजहबी नहीं होते, इतना याद रखें। हम 22,000 पर खुश होने वाले लोग नहीं हैं, बेशक हमें तो 72 वफादार चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। करबला में एक तरफ 22,000 गुंडे थे और एक तरफ 72 वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान। 22,000 का नाम नहीं मिलता, तवज्जो, बेशक। 22,000 का नाम नहीं मिलता और 72 का नाम मिटता नहीं, उनका नाम मिलता नहीं, इनका नाम मिटता नहीं। वजह जी जी बेशक 22,000 होकर बहुत खूब माशाल्लाह। और ये 72 होकर भी अल्लाह के वफादार और मुखलिस बंदे। सुभान अल्लाह, जी सुभान अल्लाह। इसलिए ध्यान से सुनो, गौर से, 5 करोड़ का बंगला 10 करोड़ बनाओ, हम मना नहीं करते। हमारा तसव्वुफ तो कादरी तसव्वुफ है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे अमल क्या करो, बात, हम मना, जी बेशक हम दकियानू से फिक्र के लोग नहीं हैं। हम लोग ऐसा नहीं कहते कि जो जितना धार्मिक होगा वो उतना शादी से दूर होगा ना। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब। ढोंग रचाकर शादी ना करना और फिर सफेद दाढ़ी होने के बाद रेप केस में, जी जी क्या बात है। कौन सी मजहबियत है? ये कौन सी मजहबियत? हमारा मजहब तो ये, जब मजहब की जी बेशक रसूलुल्लाह निकाह करते हैं तो निकाह करना ये मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि निकाह करना ये तो माशाल्लाह हिस्सा है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना मजहब इतना अजीम मजहब है, इंजॉय के सारे रास्ते बताता है, बस बेशक हराम न करना। जैसे जो करें दूसरों से मुराद टारगेट पे नहीं है, लेकिन आप ढूंढे गूगल पे वो दूसरे कौन है, थोड़ा आप भी अपनी बेशक। ऐसा नहीं कि इंटरनेट पर सिर्फ सुनना है दोस्तों, दिल की गहराइयों से सुने इंशाल्लाह, बड़ा सुकून मिलेगा। पूरा बयान सुनिएगा दोस्तों। ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मजहबी हैं इसलिए सैर नहीं कर सकते, घूम। जी क्या बात है। मैंने वो कहा वो किसी का फरसूदा मजहब होगा जिसमें सैर नहीं कर सकते। मेरा मजहब कहता है सीरू फिल अर्द, जमीन की सैर, जी बल्कि सैर भी हमारे यहाँ सुन्नत है। क्यों? इसलिए कि जब हमारा नबी सैर करता है, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा नबी सैर करता है, और कैसी सैर, जिसकी सैर को कुरान यूं बयान करता है, सुबहान बहुत खूब। असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिद, जी जी क्या बात है। लदी बारकना हौलहु आए हाय लियहु मिन आयातिना इन्नहु माशाल्लाह समीउल बसीर। अल्लाह क्या बात है। जब नबी ने सैयद साहब की बात तो अलग ही है बेशक। सैर क्यों ना करे, लेकिन सैर बता दी गई। जी जब सैर करने जाओ जी क्या बात है। तो पाप न करो। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत। सैर करने जाओ तो शराब न पियो। सुभान अल्लाह। सैर करने जाओ तो औरतों पर बेशक। नजरें न डालो। हम भी सैर करते रसूलुल्लाह ने देखी थी, जब हुजूर पहुंचे मस्जिद अक्सा, जी जी अल्लाह ने उनकी मेहमानी की। माशाअल्लाह। हुजूर के सामने 2 चीजें आई, अलग अलग रिवायत है, आए हाय हाय की मुनासिबत से 2 चीजें पढ़ रहा हूँ, 3 का भी। बहुत खूब माशाल्लाह। 2 चीजें, शराब भी रखा गया, दूध भी रखा गया। तवज्जो, जी। सैर है, सैर में अल्लाह की तरफ से बतौर इम्तिहान जी क्या बात है। रखा गया, दूध भी रखा गया, दोनों में से जो चाहो पियो। इसलिए कि आदमी जब सैर के लिए निकलता है बेशक तो अपनी मौज में होता है। आदमी जब हुजूर के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, सैर के लिए निकलता है अपनी कैफियत में होता है, आए हाय हाय सैर के लिए निकलता है अपने अंदाज में होता है। सैर में अच्छे अच्छों को पहचान सकते हो कि कौन कितना मुत्तकी। जी माशाल्लाह सफर में पहचान में आ जाते हैं तो सैर में तो और पहचान में आते हैं। जब हुजूर के सामने बहुत खूब माशाल्लाह। हुजूर ने शराब नहीं पिया, हुजूर ने दूध पिया। हुजूर ने दूध, क्या बात है। जिब्रील ने कहा हुजूर आपने अच्छा किया, शराब नहीं पिया। अगर शराब पी लेते तो आपकी पूरी उम्मत गुमराह हो जाती। उस जी नबी ने शराब नहीं पिया, दूध पिया, बता दिया मेरे उम्मतियों हम सैर के लिए निकले, शराब छोड़ बेशक। दूध पिया, तुम भी निकलना, शराब को हाथ मत लगाना, दूध पियो तो जायज है, शराब पीने की इजाजत नहीं है।
کیا بات ہے ماشاء اللہ. नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक जी. आला हजरत जामिया अरबिया मदीनतुल उलूम जश्न दस्तार बंदी. वाह वाह वाह. सैर करने के بے شک. गोवा जाओ, मना अंदर देखो, दाएं बाएं नहीं देखो. ये भी हमारे नबी ہائے 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 हुजूर जा रहे थे मस्जिद, کیا بات ماشاء اللہ. بے شک. जा रहे थे मस्जिद अक्सा. جی جی کیا فرماتے ہیں ماشاء اللہ. मैं बतौर بے شک. उलमा जान रहे मैं कहां से पढ़ रहा हूं. हैं? मेरी तरफ देखे, हुजूर ने नहीं देखा. दूसरे ने कहा मेरी तरफ देखे, हुजूर ने नहीं جی देखा. तीसरे ने कहा मेरी तरफ देखे, नहीं देखा. हुजूर सैर तो कर रहे हैं मगर साथ वो निगाह जिसके बारे में جی कहते हैं नीची आंखों की शर्म और हया पे दुरूद, کیا بات ہے ماشاء اللہ. इफ़्फ़त पे लाखों सलाम. अल्लाह अकबर. तालीम उम्मत के लिए सैर भी हो रही है, جی नजर नहीं भटक रही है, नजर बहुत अपने खूब, मकसद बहुत पे खूब, लगी हुई माशाअल्लाह. है. जब मस्जिद अक्सा पहुंचे और जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह, ہائے 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 या आपने उस बुढ़ी کیا بات ہے. हैं? उस बुढ़िया जानते हैं जो جی सच सवर के आई थी कौन थी? आपने नहीं देखा ना उस बुढ़ी को. हुजूर ने ماشاء اللہ. वो कौन थी? वो दुनिया थी. दुनिया बुढ़ी हो गई है. کیا بات ہے ماشاء اللہ. बुढ़ी आपने नहीं देखा. अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते, جی तो आपकी उम्मत दुनियादार हो जाती. फिर किसी ने कहा मेरी तरफ देखें, वो यहूदियों का کیا दाम. بات ہے. अगर आप उसकी तरफ देखते ماشاء اللہ ماشاء اللہ. वो ईसाइयों का दाई था. دل باغ باغ ہو گیا سن کر کے. جی جی बच्चे होते ہائے 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 ईसाई हो जाती. वो मजूसियों का दाई था. आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते, کیا بات ہے ماشاء اللہ. आप इस परस्त हो जाती. लेकिन आपने किसी की तरफ नहीं देखा. तो भाइयों, हमारे मजहब में सैर करना मना नहीं है. جی بہت خوب ماشاء اللہ. दरमियान जो हराम काम करते हो वो मना है. ہائے 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 सुनते हो वो मना है. हराम काम करते हो वो मना है. इस्लाम कहता है एंजॉय. جی کیا بات ہے. मैं बार बार इस पे कह चुका हूं. उस्मान गनी मालदार हैं. بے شک. अपने माल की बुनियाद पे 2 बार जन्नत खरीदी. और हजरत उस्मान ने ऐसी जन्नत جی खरीदी कि अल्लाह के रसूल ने यहां तक कह दिया आज के बाद بے उस्मान شک. कुछ भी कर ले वो जन्नत ही में दाखिल होगा. ہائے 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 अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान. ये माल की बरकत है. तो माल بہت خوب ماشاء اللہ. तो सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह. माँ बाप पे खर्च करो. सुभान अल्लाह. भाई बहनों पे खर्च करो. सुभान. جی ماشاء اللہ. यतीम मिस्किनों पे खर्च करो. सुभान अल्लाह. लेकिन अगर माल की वजह से अल्लाह को भूल जाओ, फिरौन کیا بات ہے ماشاء اللہ. नमरूदी सोच हो, कारूनी सोच हो. अब थोड़ा गौर करो. मैं जो بیان سن کر کے دل خوش ہو جاتا ہے سید امین القادری صاحب کا ماشاء اللہ. थोड़ा सुनने بہت ہی خوبصورت بیان ماشاء اللہ. तकरीर के बाद हमारे ہائے ہائے کیا بات ہے. जाहिद हुसैन साहब कह रहे थे कि तेरा ही हौसला है कि इतनी चीज. جی جی کیا بات ماشاء اللہ. तो मैंने कहा मैं क्या बोलूं. इसलिए بے شک. तो एक ही के ہائے ہائے ہائے. मजमा सैकड़ों का हो, हजारों का हो और جی के तौर पे लाखों के मजमे में भी मैंने बोला है, बोलता हूँ. लेकिन बोलता हूँ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. से की गई. तुम कितना ही शोर कर लो, उस एक तक मेरी आवाज पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता. جی جی मेरा अल्लाह और वो एक है. उस एक का کیا بات ہے. गुंबद खजरा का मकी जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है. जो पिया को بہت خوب. वो सुहाना राग है. जिससे नाखुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं. جی आप कितना भी चिल्लाएं ماشاء اللہ. मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा क्योंकि मेरी तवज्जो उस एक की और उस एक के एक की. جی بہت خوب. लेकिन अगर आपकी तवज्जो भी हो जाए तो आपके साथ मेरी भी बिगड़ी और मेरे साथ आपकी बिगड़ी बन जाएगी. और मैं खुश हूँ. मुरादाबाद के गिरदो जमा بے شک. लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, अच्छा जमा होते हैं. इसमें हमारा कमाल नहीं है. इसमें हुजूर सदरुल फाजिल फखरुल अमास. تو دوستو میرے ساتھیوں میرے ہمدم میرے پیارے سید امین القادری صاحب کا بیان ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ کو کیسا لگا
کمنٹ کر کے ضرور بتلائیے گا، اور ہم پھر آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔